In the last of the series of the segments we have been doing on Madhya Pradesh, Battleground 2023, now we are at the most critical juncture. The most critical juncture, apart from the issues which are going to roll, apart from the people who are going to dominate, apart from who has failed where, whether which segment is unhappy. Now we are coming to the segment who is the most popular party, who is the most popular man, and who could well be forming at the government if our numbers go right. If they go wrong, we will blame the those who have done the survey. Uh, Critically, now the next numbers with our screens are going to come up कि मध्य प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट करेंगे. Which party, according to our GIS survey, is going to form, people are going to vote for. Now, 43%, 43.5% overall voters are saying that they will pick the BJP. Out of that, 43.3 are in urban areas, 45% in the rural areas. Very importantly, more rural voters are preferring the BJP than the urban. That could well indicate the BJP's Labharti scheme, as Sujit was earlier mentioning. 18 to 25 segment years, 42.7% people say they prefer the BJP, and that remains the highest section. Means, apart from the general category in the caste group, 51.7% voters are saying that they vote for the BJP. Now, let's give you the surprise or perhaps the dampener. If anybody from the BJP was celebrating, there is a setback. Because exactly 43.5% voters in our exit poll are saying they are preferring the Congress party. So it's a complete tie, 43.5% as far as the voter preference for the parties is concerned. In urban areas, more people are preferring the BJP, and in rural areas also, more people are preferring the BJP. The swing comes in other segments like the Muslim voters. 86.7% Muslims in Madhya Pradesh are polarizing towards the Congress party, and that's very important factor which one cannot. This is one of the granular elements as far as the surveys, our report is saying, is that there is no large split with no big BSP or Samajwadi Party. I think the Muslim voter has very clearly gone in favor of the Congress party, and if there is no division as far as the Muslim vote is concerned, the Congress becomes a very clear favorite among this thing, and Anshul, that's very good news for you. But when it comes to general voters, the Congress party is at 35.5%. Caste-wise, Brahmins, Rajputs, Yadavs, Lodhis, Kushwahas, Telis, Kumhars, and cutting across several caste lines, the caste hierarchy, people are voting for the BJP. In terms of BJP is the preferred party. Among the SCs, very dominant shift in favor of the Congress party. We are noticing 57.1% voters in the SC. Interestingly, the Gujar vote also seems to be swinging in favor of the Congress party. The performance of the others, the BSP, the GGP, the AAP, and Samajwadi parties, barely, if you put together, they are including others, they are denting it by something close to 10 to 11% preferences as far as the. What about the Adivasi? Is that also there? Yes, we will come back to that. If the people are voting for the BJP, Rashid, one very interesting factor which I am finding, क्यों दोबारा मौका देना चाहते हैं? The standout picture, the standout figure in all of this is the second reason in a graphic plate which people are saying 22.84%, 22.84% people overall in Madhya Pradesh who are voting for the BJP are saying that their reason is Narendra Modi. Are you surprised? Not at all, Rahul, not at all. I'm not surprised. In fact, I compliment you for whoever has done this, survey has done a very comprehensive thing. The BJP has a very, committed vote bank. If there is one state that is a kind of, model state for the BJP cadre, it's been, Madhya Pradesh, Madhya Bharat. See, all those kind of founders and, founding fathers like Atal Bihari Vajpayee and another founding member, Rajmata Sindhia, Kushabha Thakre, they all come from Madhya Pradesh. So while the BJP is doing very well in Uttar Pradesh, but their, homeland is actually
Madhya Pradesh. So there's a committed 40% plus voter, regardless of whether party wins or loses. That's with the BJP. The OBCs, many of the OBCs are farmers, but the kind of multiple this thing they support the BJP, and that's where Mr. Narendra Modi comes in. कि उनके ऊपर भरोसा है, and therefore Rahul, after the Dhami experiment that you were talking about in Uttarakhand, the BJP chief minister lost. They changed chief ministers, 3 chief ministers, even BJP lost. I mean, the chief minister lost, but the BJP won. So that is something that Mr. Modi found it very tempting. It didn't work in Karnataka, it didn't work in Himachal, but that's the kind of template Mr. Modi is putting on test in Madhya Pradesh and in Chhattisgarh, and perhaps in Rajasthan also. So I am not at all surprised. Just one very quick point, Rahul, I want to make. If there is 43.5% votes for the BJP and Congress respectively, Congress is the winner. Now you ask me why. It's very simple, because there are over 50 seats last time around, or this time will also be, where the BJP has been winning for 25,000, 30,000 or more votes. Like in Indore seats, few Indore seats, the BJP candidates won by 50,000, 60,000 votes. Now if you take those votes away, then the BJP becomes a poorer or loser in many of the things when there is a small margin seat. One point which I'd like to make here from the survey, which is very interesting, is that 15.76% people are saying that they want to bring back this government, has a clear reason why they want to bring the party. Pradhan Mantri Narendra Modi 22.84, 12.20% only are saying that they want to vote for Shivraj Singh Chauhan. If they are voting for BJP, they are voting for Shivraj Singh Chauhan. But we can also weave in that 15.7% for Shivraj Singh Chauhan because सरकार उनकी थी. हिंदुत्व के कारण 8.19%. That's not a very strong push. Now, let's quickly do if they are voting for the Congress party, how many people are saying that why they are voting for the Congress party? And I would like to bring in Adesh here. Adesh, हमारा सर्वे दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार को बदलने के लिए कांग्रेस का जो वोटर वोट कर रहा है कांग्रेस को, वो 47.45% है. वो सरकार बदलने के लिए वोट कर रहा है, पार्टी को वोट नहीं कर रहा है. They are voting, a large percent of Congress voters are those who may not be loyal Congress voters. They are actually wanting to vote a government out. देखिए, इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि 2018 में जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था, वो चेंज के लिए दिया था. उसके कुछ महीनों बाद 15-16 महीने बाद आपने सरकार को तोड़ दिया और वही कांग्रेस के 20-22 जो सिंधिया के साथ विधायक थे उनके साथ आपने सरकार बनाई. तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जहां वो सिंधिया के 22 विधायक गए उन क्षेत्रों में, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है, कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां हैं जहां पे इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड, को तीसरी पार्टी वहां पे नहीं है. थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है बीएसपी का, लेकिन नंबर में कहीं नहीं आती. तो भाजपा के उन सीटों पे उनका जो कार्यकर्ता था, एक तो वो घर बैठ गया क्योंकि आपने वहाँ 22 विधायक आप कांग्रेस के ले आए, और सिंधिया जी के अपने इलाके में चंबल और ग्वालियर संभाग में इनको भारी नुकसान हो रहा है और हुआ भी है. क्योंकि आप देखिए, सिंधिया के वहाँ जाने से जितने बीजेपी के बड़े नेता थे वो अपने आप को, क्योंकि उसी इलाके से बहुत सारे नेता आते हैं, वीडी मिश्रा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, नरेंद्र सिंह तोमर उस इलाके से आते हैं, तो ये इन सब को ये बात नागवार गुजरी कि आपने कैसे हमारे कार्यकर्ताओं के मार के कांग्रेस के जो विधायक आए थे उनको हमारे सिर पे बिठा दिया. कांग्रेस ने कुछ ऐसा कारनामा या कुछ ऐसा बढ़ चढ़ के काम नहीं किया कि जो जनता उनको वोट देती. ये तो मध्य प्रदेश की जनता है जो बदलाव चाहती है, जिसका फ़ायदा कांग्रेस को हो रहा है और या होता हुआ दिख रहा है. इसमें कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का नहीं मानता कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कैंपेन किया हो, या वो घर घर गए हों, या उन्होंने ब्लॉक लेवल पे गए हों, जिला लेवल पे गए हों. जो उनके पास काडर था उसी से काम चलाया. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने उसमें एफर्ट्स पुट नहीं किए. जनता बदलाव चाहती है, इसलिए कांग्रेस को वहाँ वोट पड़ रहा है. Anshul, I would like to bring in you and pull you in here. Of all the reasons, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 reasons why people are voting for the Congress party. Among them, the top is 47.45% people are saying that they are voting for the Congress because they want to get rid of this government. Okay. Now the second biggest reason is those unnamed, those peripheral tertiary reasons. Technically, what I'm finding that the reasons solidly for voting for the Congress party are few. They are not very large number. They maybe the people are voting against a government. It's a negative vote, which eventually the Congress is benefiting because
मुख्यमंत्री कमलनाथ के कारण, एक्स पूर्व चीफ मिनिस्टर के कारण, only 13.5% voters are saying we are voting for Kamalnath. Then Kendriya Netritva, while for Narendra Modi, 23% people are saying we are voting for the BJP because of Narendra Modi. Here only 2.64% people are saying we are voting for Rahul Gandhi. Now you may be in a happy position that कि अभी तो लोकल इश्यूज पे चुनाव हो गया, कांग्रेस जीत जाएगी मान लीजिए, लेकिन दिस कंपैरिजन that in a state like Madhya Pradesh with its Lok Sabha seats where the BJP almost swept it last time, your central leader, top leader, is not even, is almost 1/10 as popular as the BJP's leader. No, see, this is a statistical comparison, right? There is an abstraction which has not been captured by the statistic. Nothing, this survey is excellent, might be, I have full respect for it. Or you say that you didn't make him the issue? You know, the way the questions are asked, where it's been put forward, I'll tell you what the abstraction is. मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, वो आपके सर्वे में नहीं रिफ्लेक्ट किया हुआ, वो एक एब्स्ट्रैक्ट इशू बन जाता है। मुझे लगता है कि वो लोगों की भावनाओं में है, लेकिन वो एक तरह से वो उसका कंक्लूजन वहाँ पर पेपर में नहीं आता। मुझे लगता है कर्नाटक के बाद एक भरोसा हुआ है कांग्रेस सरकार के, और भी वजह से, छत्तीसगढ़ बगल में है और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वादे किए थे। हम तो वादा भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं गारंटी है, हम करेंगे, हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा नहीं, ये गारंटी है। तो ये मुझे लगता है लोगों के जहन में बैठ चुकी है, और ये एक तरह से इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन, इट इज़ नॉट, यू कैन नॉट कैप्चर इट मे बी इन द नेचर ऑफ द सर्वे दैट यू हैव। राहुल जी, मैं बताता हूँ, आपके जो सर्वे का जवाब है ना, मैं दे देता हूँ उसको। आपने कहा कि बहुत डिफरेंस है प्रधानमंत्री मोदी में और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में। दरअसल राहुल गांधी को इस बात का अंदाज़ा है, राहुल गांधी ये बात जानते हैं, इसीलिए उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव की जब जिम्मेदारी ली और 3 पेज का इस्तीफा दिया था, चिट्ठी लिखी थी जुलाई में CWC की मीटिंग के बाद, तो उसमें उन्होंने कुछ महीने बाद, हाँ नहीं, इस्तीफा तो वो उससे पहले दे चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको ये कहा गया कि भैया आप ना वर्किंग कमेटी का वेट कीजिए, आपको जो करना आप उसी के अंदर करिएगा। लेकिन जिस रिजल्ट आया था उस दिन वो इस्तीफा दे चुके थे, उन्होंने कह दिया मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगा। अब मैं उस बात पे आता हूँ जो आपका सर्वे कह रहा है। राहुल गांधी को इस बात का अंदेशा है, उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, जिन लोगों को मेरे साथ चलना है वो तैयार रहें, हो सकता है हम 24 में वापस करें, हो सकता है 29 में करें, और हो सकता है उसके बाद भी हमें समय लग जाए, ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेगा। आप देखिएगा, जब खड़गे जी अध्यक्ष बनने के बाद जब एक गाड़ी में बैठते हैं तो खड़गे जी फ्रंट सीट पे बैठते हैं, राहुल गांधी उनके पीछे बैठते हैं, वो कभी उनके बराबर में नहीं बैठते, क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि मैं फ्रंट सीट ले चुका हूँ। वो जानते हैं इस बात को कि आज गांधी परिवार की जो पॉपुलैरिटी है उसमें का बहुत गिरावट है। उनके खिलाफ जो वो हमेशा कहते आए हैं कि मेरे खिलाफ मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए इतना पैसा पुश किया गया कि मुझे पप्पू बनाया गया, इसीलिए राहुल गांधी ने ये यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, और अपनी उस छवि को वॉश आउट कर दिया। उसका एक बड़ा रीज़न ये था, जो मैं पहले भी मैंने आपको कहा है ये बात, कि पहले परिवार में और फिर पार्टी के भीतर राहुल गांधी ने अपने आप को नेता एस्टैब्लिश किया कि हाँ, मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो इतनी बड़ी यात्रा कर सकता है और कोई इसमें है नहीं। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, कर्नाटक में भी आपने देखा कि विद ए सेंस ऑफ अथॉरिटी समबडी लाइक रणदीप सुरजेवाला बैक्ड बाय राहुल गांधी एंड खड़गे कुड मेक सिद्धरामैया एंड डीके शिव कुमार फॉल इन लाइन? मतभेद खत्म नहीं हुए थे, मगर ये हिसाब कि अगर लाइन तोड़ी तुमने तो तुमको कुछ हो सकता है। नहीं, झगड़े बहुत थे राहुल जी, इतने झगड़े थे, लेकिन सुरजेवाला ने सिर्फ एक काम अच्छा किया कि इन झगड़े को बाहर नहीं आने दिया सड़क के ऊपर, मतलब कमरे, पब्लिक लड़ाई नहीं, हाँ, कि कमरे के अंदर बैठ के आप एक दूसरे का सिर फोड़ लीजिए, लेकिन हाँ जो मर्जी करिए, लेकिन बाहर कुछ नहीं जाएगा। और वो उसमें सक्सेसफुल रहे, इसलिए उनको मध्य प्रदेश भेजा गया, क्योंकि इससे पहले जितने प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, दीपक बाबरिया थे, JP अग्रवाल थे, इनको किसी को भी कमलनाथ जी इतना सीरियस नहीं लेते थे, उनको मतलब इनकी बात सुनते भी नहीं थे। तो ये लोग आके दिल्ली बताते कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। अब देखिए, पिछले कुछ टाइम से कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है ना, वो बदल गया। अब देखिए कर्नाटक में इन्होंने क्या किया, एक तरफ एक कोने में राहुल गांधी होते हैं, एक में खड़गे होते हैं, एक में प्रियंका गांधी होती है। और अभी जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तेलंगाना में खास तौर पर तेलंगाना कांग्रेस चाहती थी कि सोनिया गांधी वहाँ पे जाए, जहाँ से उन्होंने तेलंगाना बनाने की घोषणा की थी, वहीं से प्रचार शुरू करें और कम से कम 3 दिन हमें दें। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस, क्योंकि उसके कुछ निजी कारण थे, आखिर में एक वीडियो जारी किया गया ताकि तेलंगाना जनता उसे अपील की जा सके।
और वो कारण नहीं थी, तो उन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्यों वहाँ पे नहीं गई। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना तरीका चेंज किया है। ऐसे ही आप राजस्थान में देख लीजिए, प्रियंका गांधी एक कोने में, राहुल गांधी एक कोने में और खड़गे जी एक कोने में, ऐसे तेलंगाना में चल रहा है इनका। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी है और ये सक्सेसफुल रही कर्नाटक में। क्यों? जो स्ट्रैटेजिस्ट थे सुनील कोनुगोलू, उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा डाटा के ऊपर कि आप देखिए, अब आप राहुल गांधी वापस आइए। राहुल गांधी के बाइक चलाते हैं लद्दाख में जाके, वो चॉकलेट फैक्ट्री में जाते हैं, वो फर्नीचर मार्केट जाते हैं, वो बाइक की मार्केट में जाते हैं, ठीक है। और वो सब कहाँ पे आता है? उसका एक शूट होता है, वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आता है, फिर यूट्यूब पे आता है, फिर फेसबुक पे आता है और फाइनली वो ट्विटर पे आता है। राहुल गांधी टी शर्ट ही पहन रहे हैं पिछले 1 साल से, दाढ़ी रख रहे हैं। ये साधारण बात है? नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। बेसिकली इनको ये लगता है कि जो 18 से 30 साल का युवा है, जो इंस्टाग्राम पे बैठ के रील्स देख रहा है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत फास्ट चेंज होती है। क्यों विराट कोहली की दाढ़ी लोग पसंद करते हैं, तो राहुल वाली क्यों नहीं करेंगे? सुजीत, ये बैटल ऑफ द दाढ़ीज होने वाला है क्या 2024 में? नहीं, दाढ़ी वाला नहीं, बैटल भला उसकी दाढ़ी मेरी दाढ़ी से सफेद कैसी, काली कैसी, जनता को पसंद कैसी? नहीं, एक दाढ़ी तो है, अब दूसरा दाढ़ी है कि नहीं ये तो कांग्रेस वाले बता पाएंगे 24 में। मुझे लगता नहीं कि किसी को देखो, एक प्रेडिक्ट इंटरेस्टिंग चौबीस चीज पे दाढ़ी नहीं है। डेटा में दिख रहा है कि हिंदुत्व फैक्टर जिस पे बीजेपी एक सक्सेस स्टोरी लिख चुकी है कई बार, तो भाजपा जो वोट दे रहे हैं लोग उसको, द रीजन दैट दे आर वोटिंग फॉर द बीजेपी, भाजपा हिंदुत्व धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देती है 5.25। नाउ अगर मैं इसको जोड़ दूं 22.84% जो मोदी जी को मिलता है, क्योंकि मोदी अपने आप में सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर छवि लेके नहीं आते, वो एक ओबीसी की छवि और एक हिंदुत्व, स्ट्राइडेंट हिंदुत्व फेस की छवि इनकॉर्पोरेट करके आते हैं। तो क्या डू यू थिंक दैट हिंदुत्व स्टिल सेल्स? इज इट स्टिल अ फैक्टर? क्या ये बुलडोजर नीति चली जो? नहीं, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि मोदी जी के नाम पे लगभग 23% लोगों ने कहा कि इसलिए हम भाजपा को, इसका क्या मतलब, बाकी परसेंट लोग क्या मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं जो भाजपा को पक्ष में वोट करना चाह रहे हैं? दूसरा, शिवराज जी का लगभग 15% या 13% कुछ आपने बताया 15.75% देना चाहते हैं, तो बाकी लोग क्या शिवराज जी के नाम पे वोट नहीं देना चाहते हैं? तो 22 पर शिवराज भी एक फैक्टर है। 23 और 15 मिला करके बाकी लोग क्या किस पर वोट देना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के कारण, हिंदुत्व विचारधारा के कारण, भाजपा पार्टी के समर्थक हैं इसलिए, स्थानीय भाजपा नेतृत्व के कारण, यानी जो लोकल डिवीजन सब डिवीजन लेवल पे भाजपा सरकार की योजनाओं के कारण, भाजपा सरकार ने आवास शौचालय का लाभ दिया है, लाडली बहन योजना इज वन फैक्टर। 14.94% बीजेपी को जो वोट देना है वो कह रहा है कि वो उसके में विच माइट बी हैविंग अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ वुमेन। नहीं, इसके बारे में मैं 2 चीज़ कहूँगा। भाजपा के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, तो डीब्रीफिंग में उन्होंने इस चीज़ को कहा था। लाडली लक्ष्मी के बारे में बोला था, महिला वोटर के बारे में बोला था। उन्होंने बोला था कि लाडली बहना योजना जो है वो थोड़ा बहुत बेनिफिट दे रहा है, लेकिन वो बहुत गेम चेंजर हमारा स्कीम नहीं है कि गेम चेंज हो जाए, एक बात वो कही थी। दूसरी बात, महिला वोटिंग जहाँ बढ़ने की बात थी, तो उनका लॉजिक ये था कि चूँकि ये यहाँ से माइग्रेशन लेबरों का बहुत बड़े पैमाने पर होता है, दूसरे राज्य में काम करते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी जैसे स्टेट्स में, तो महिलाएं ही रह जाती हैं वहाँ पर गांव में, पुरुष मैक्सिमम पुरुष जो बाहर काम करते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज में जाहिर सी बात है महिलाओं का परसेंटेज थोड़ा सा आगे दिखेगा। रही बात हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं, विधानसभा में भी अगर यही हिंदुत्व की बात चली होती तो पिछले बार लोकसभा, पिछले विधानसभा चुनाव में ये स्थिति नहीं होती भाजपा की, उसका कोई नैरेटिव बढ़ता नहीं। और ये फिर अगर ये बन गया होता तो अभी तक वेव क्रिएट हो जाता, और उसका सिर्फ राजस्थान पे भी असर पड़ता, उसका तेलंगाना पे भी असर पड़ता, बाकी राज्य में भी पड़ता, सिर्फ मध्य प्रदेश में रह जाएगा, छत्तीसगढ़ में नहीं जाएगा, या राजस्थान में पड़ोसी राज्य में नहीं जाएगा, ये नहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि हिंदुत्व की जो छवि है ये विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा काम करेगी। बुलडोज़र बाबा वाला शिवराज जी ने 1-2 मकान गिराए और बुलडोज़र बाबा की छवि उन्होंने, लेकिन उनको लगा कि हमारी जो अपनी छवि है सामान्य टाइप का। He always had a secular image, you know. Shivraj was not known for strident Hindutva. In fact, the BJP could not, the Congress could not attack him on Hindutva. He used to go in iftar parties, you know, with the topi. सेकुलर कॉम्युनल की बात तो अलग है, वो एक अपनी छवि बनती है, जैसे योगी आदित्यनाथ की छवि है कि ये लड़ने वाला है, मरने वाला है। शिवराज जी कोई छवि नहीं है। मोदी जी का लगता है कि हम मजबूती के साथ लड़ा हुआ है, लेकिन वही राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का वो छवि नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी की वो छवि नहीं थी। तो छवि भी मैटर करता है। तो योगी का जो आभा मंडल है उसको शिवराज धारण करके अगर चाहे कि हम वो स्वीप कर ले तो वैसा नहीं होता है। उनको जो वोट मिलेगा शिवराज की अपनी जो पॉलिटिक्स के तरीके हैं उस हिसाब से वोट मिल सकता है।
रही बात ये आंकड़ों में, मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है कि इसमें ये दो चीज़ हम अभी तक नहीं समझ पाए। एक तो आदिवासी का मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ पर क्या ट्रेंड है। दूसरा मैं देख रहा था कि लगभग 20% लोग ऐसे हैं सर्वे में जो कह रहे हैं कि किस मुद्दे पर वोट देना पता नहीं, बस वोट देने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। फैक्टर हो सकता है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या सचमुच शिवराज थक गए हैं? 2020 में बहुत सालों के बाद शिवराज को जो सत्ता मिली वो खुद नहीं उन्होंने जीती, वो उनको खैरात में मिली। वो अमित शाह की मैन्युफैक्चर्ड सत्ता थी, नॉट अ विक्ट्री ऑफ शिवराज सिंह चौहान। क्या वहाँ से डिक्लाइन दिखता है आपको शिवराज सिंह चौहान का? दैट इज वेयर हिज पोजिशन एज अ मास लीडर गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। ये निश्चित रूप से ये तो है, जो देने वाला था पार्टी को वो मजबूर हो गया और पार्टी लेने वाला बन गया। और हाँ, लेने वाला बन गया, पार्टी ने उसे दिया। दूसरी बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनको रखा गया। तो बड़ी बड़ी बात होती थी पहले, पार्लियामेंट्री बोर्ड भाजपा की सबसे बड़ी नीति निर्धारण इकाई, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, ये सब रहे। अब इनके साथ कौन कौन है? अभी इन्होंने येदियुरप्पा को बनाया, लाल सिंह शेरपुरा जी वहाँ पर बने हुए हैं, जिनको पब्लिक में कोई पहचान ही नहीं हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो मेंबर बने हुए हैं। तो ये तो टेम्पररी है, वो भी क्या एक एक्स्ट्रा में है, जो कभी भी तलवार लटकी हुई कभी भी गिर जाए। दूसरी बात है कि जब वो मजबूर हो गए, स्टेट प्रेसिडेंट बदलवा नहीं पाए, स्टेट प्रेसिडेंट वही रहेगा, वो बदलवा नहीं पाए। शिवराज सिंह अपने हिसाब से टिकट नहीं दे पाए। शिवराज सिंह जो चाह रहे थे बहुत कुछ नहीं हुआ, तमाम तरह की चीज़ें। अपनी सभा तो आपने देखा होगा कि रैलियों में प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं। इस तरह की जब नौबत आ गई हो तो शिवराज सिंह निश्चित रूप से थक गए हैं। राजनीति में समय भी खराब उनका चल रहा है और थके हुए भी हैं। शिवराज में वो ऊर्जा उष्मा नहीं रही जो पहले हुआ करता था। मुझे लगता था कि उन्हें खुद ही कह देना चाहिए था कि अब हमारा बहुत हो गया, हम संगठन में काम करेंगे। शिवराज जी को कह देना चाहिए, कर देना चाहिए। कहता है कोई ऐसे? नहीं, कहना चाहिए था। येदियुरप्पा ने आखिरकार कह दिया कि मुझे नहीं करना है, जब लगा कि नहीं, मजबूर हो येदियुरप्पा जी गए। का रास्ता इसलिए भी खुला क्योंकि उनको अपना दरवाजा तब उन्होंने बंद किया जब उनको अपने बेटे का दरवाजा खोलना था। नाउ लेट्स कम टू द मोर क्रिटिकल सेक्शन, द क्रिटिकल सेक्शन which perhaps almost everybody would be waiting for is that where does this all lead to? You know, the real panditry behind all the statistics and the data and the arguments and who voted for whom and why didn't somebody vote for whom eventually boils down to the numbers. That's what everybody is sitting and waiting for. Now, if we look at the segments, regions in Madhya Pradesh, Gwalior, Chambal, Sagar, Rewa, Shahdol, Jabalpur, Hoshangabad, Bhopal, Ujjain, and these areas, which are the main playgrounds, what they call, if there is one big ICC World Cup, these are the places where the test matches are being held. So if we look at that, the biggest Adesh was, the most critical was the 34 odd seats of the Gwalior Chambal region. Jyotiraditya Scindia walked out, and Anshul, first do you think you have been able to minimize the damage? Oh, absolutely. I mean, it's completely turned the other way. I think that there is a huge support for the Congress party in this critical region. You know, one important factor was the scheduled caste that you read out there. Their movement towards the Congress party, they were moved away, has been critical factor in this. I mean, there's a number. Major gains for the BJP Yeah, in the past. yeah, and they moved away, and this is a region where there are a lot of them, a lot of scheduled castes The in this highest particular tribal region. population also. But tribal population, yeah, we have to get their numbers. But you know, the scheduled castes have completely moved away, and I think that there is continuous discontentment among. You know, the thing was the way. You know, the way BJP did politics, you know, in the shifting sands kind of way, जैसे उन्होंने सरकार उस समय गिराई, मुझे लगता है कि उनको उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला, उनको वहाँ पर लोग निराश हैं और वहाँ पर इसको फ़ायदा कांग्रेस को मिला है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए. So that is a very critical point here. The clock is ticking now. The clock is ticking on what everybody has been waiting for, and I will not keep the suspense on for a very long time. The most crucial 7 to 8 regions in Madhya Pradesh, which way are they going after the setbacks and the triumphs suffered or incurred by the political parties in Madhya Pradesh? In Gwalior, Chambal, Sagar, Rewa, Shahdol, Jabalpur, Hoshangabad, Bhopal, Ujjain, these regions, which way is the pattern blowing? 34 seats in Gwalior and Chambal. BJP 8 to 12.
the BJP is not making any significant gains in the Gwalior Chambal region, despite the entry of Jyotiraditya Scindia into the BJP fold. The Congress, which had done much better than the BJP in the 2018 polls, is likely to repeat its performance by securing 21 to 25 seats in the Gwalior Chambal region. Others are going to be a maximum of 0 to 2 seats. In the Sagar region, the BJP 8 to 11 seats, Congress party 15 to 18 seats. In Shahdol, in Rewa, 8 to 12 for the BJP and 10 to 13 for the BJP. Means in this segment of Rewa, there is a very neck-to-neck battle on between the BJP and the Congress. And Rewa is the area which abuts the southern Uttar Pradesh region and the north Madhya Pradesh region. Then you've got Shahdol BJP 4 to 5, Congress 3 to 4, again a very neck-to-neck battle. Then you have Jabalpur. Now Jabalpur is the first sign that the BJP is making certain amount of gains. 18 to 22 seats for the BJP, 15 to 19 for the Congress party. Now in Hoshangabad, 7 to 9 for the BJP, 2 to 4 for the Congress party. Means again, this is the area near Bhopal and others, which is where the BJP seems to be doing much better. In the Bhopal region, very interesting, with a sizable minority population, youth. If unemployment is an issue, where we have already found that the urban centers are not very happy with the employment generation, and also I think urban centers are more fickle as far as their political loyalties are concerned. Gas 20 रुपए बढ़ गई, gas 30 रुपए कम हो गई, बसों के किराए बढ़ गए. So their votes do swing on these things. So in Bhopal you have 11 to 15 for the BJP and an absolute close finish for the Congress, 10 to 14. So 11 to 15 in Bhopal for the BJP, 10 to 14 for the BJP. In Ujjain, another stronghold of the BJP at one time, from where you have several top leaders of the Madhya Pradesh BJP coming. 14 to 17 seats for the BJP out of a total of 29, 12 and to 15 for the Congress party out of the 29. Indore. Now that's where perhaps the story may get written, because that has been the area where the Holkars came in. That area abuts Maharashtra, the birth of the RSS and that entire Hindutva movement. And in Indore, the picture is not very rosy for any one of the party. Out of the 37 seats in the Indore area, 19 to 23 for the BJP. That's what our survey is saying. And 14 to 18 for the Congress party. Means the margin for the BJP, but a very slender margin. Now let's come down to the brass tacks. The brass tacks, what do they say? Eventually, if the survey goes right, and if the voter temperature we have been able to create with our own thermometer is right, the BJP is likely to trail as far as the midpoint is concerned, which I had said in my teaser, that if we take the band of numbers that the BJP is securing in seats and the Congress, and we take the midpoints, the BJP midpoints is restricted to 111 odd, whereas the Congress midpoint is at 116 to 17 odd. Means there is a very slender 4-seat margin. Shujit, your views, why? निश्चित रूप से कांग्रेस ने पिछली बार जो अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद जिस तरह सिंधिया जी गए और जहां पर भाजपा को गेन करना चाहिए था सिंधिया के आने से, वो सीट आपके सर्वे के हिसाब से वहां पर गेन नहीं हो रहा है. तो एक तो मेजर वहां पर लूज़ कर रही है बीजेपी, जो ये इतना मार्जिन दे रहे हैं. और कमोबेश रूप से जो भाजपा का फीडबैक है वो भी यही कह रहे हैं कि 115 के आसपास उनका दावा है कि हम सीटें जीतेंगे. बाकी जहाँ जहाँ का आपने जिक्र किया, एक दो भोपाल और उनको इंदौर एरिया को छोड़ करके, तो वहाँ पर बीजेपी बहुत ही पीछे छूट रही है. इसका मुझे बहुत स्पष्ट रूप से कि पहली बार वहाँ पर बीजेपी का कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, डिक्लेयर नहीं है. दूसरी बात, अगर वो नहीं है भाजपा जीते, कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर के रार है. तीसरी बात है कि जो भाजपा ने मंत्री और सांसद चुनाव में उतारे हैं, कह रहे हैं कि हम हारी हुई सीटों पर लड़ाए हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुद ही
फंसे हुए हैं और उनको चुनाव लग रहा है कि फंसे हुए हैं। वो अगर हार जाते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। उनको लग रहा है कि क्या आपको लग रहा है मुरैना वगैरह की कुछ सीटें फंसी हुई हैं? निश्चित रूप से आपके सर्वे भी बता रहे हैं भिंड मुरैना के आसपास की सीटें जो हैं वो भरी हुई हैं। प्रहलाद सिंह पटेल का फंसा हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर जी की सीट फंसी हुई है और उनका उद्देश्य क्या था कि 6-7 सीट पर असर डाल लेंगे, लेकिन अगर ये खुद ही अपनी सीट हार जाता है तो वहाँ पर तो और नुकसान हो जाएगा। तो सीएम का चेहरा नहीं होना, कांग्रेस बहुत ही क्या कहते हैं इसको लो पिच पे चुनाव को ले जाना, और ये जितने भी आपने मुद्दे गिनाए बेरोजगारी और तमाम तरह की बातें, भ्रष्टाचार की बातें, वो सब कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है। और सबसे बड़ा जो मुझे फैक्टर लगता है, मोदी जी का सिर्फ 22% मोदी जी के नाम पर अगर वोट पड़ रहा है तो इसका मतलब मोदी फैक्टर वहाँ कर्नाटक की तरह ही नहीं चला, उतना नहीं चला जितना चलना चाहिए। या बीजेपी के एक्सपेक्टेशंस। आदेश, one thing I will still say about the Gwalior Chambal belt, 34 seats, the survey says that the Congress is definitely repeating its performance of 2018, but I have one little doubt. What I have found that all these 34 seats are contesting more like independent entities. I don't think it is a cohesive one large entity voting unlike last time. That's my impression which I've got. Second, the Congress has failed to give an alternative. एक वैकल्पिक नेता उस रीजन में देने के में कांग्रेस चूकी है, और वो एक कारण हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नंबर अभी जो दिख रहे हैं वो उतने ना हो, क्योंकि सिंधिया फैक्टर अभी भी एक फैक्टर उस रीजन में है। नहीं, देखिए पिछली बार क्या था, 2018 में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ज्योतिराज सिंधिया थे, जिनको ये मानते थे कि देखिए मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो उस एक लालच में कह लीजिए कि उनके पूरे एरिया ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, एक मुश्त वोट दिया। अब वो चले गए भाजपा में, तो उनके जाने से ये जो डिफरेंस है, देखिए ब्रांड वैल्यू जो थी ना सिंधिया की, वो कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एज ए ब्रांड, हालांकि वो खुद में अपने आप में एक ब्रांड है, वो उनको महाराज कहते हैं, लेकिन जब क्या होता है, जब डबल ब्रांड वैल्यू जुड़ जाती है तो आपकी इंपॉर्टेंस कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो भले ही केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से वो राहुल गांधी के साथ दिखते थे, बिना अपॉइंटमेंट के 10 जनपद घुस चले जाते थे, वैसे वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर नहीं आएंगे आपको, या अमित शाह के साथ नजर नहीं आएंगे। तो यानी जनता वजन टटोलती है नेता का, राजनीतिक वजन। और एक और बात जो सुजीत जी कह रहे थे कि बीजेपी के पास कोई भी घोषित चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं है, कांग्रेस में भी आधिकारिक रूप से किसी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया। अरे लेकिन कमलनाथ ने कोई डाउट रहने दिया है? नहीं, मैं इस बात अंशुल, पे, इज देयर अ डाउट इन योर माइंड? नो तो दैट वो एक कांग्रेस की तो परंपरा आप अच्छी तरह नहीं, परंपरा आपकी अच्छी है, लेकिन who is your clearest, who is your, no, I don't want परंपरा. Give me who, आप सुर्खियां, isn't Kamalnath the virtual face of this election? नो राहुल जी, आई नो पत्रकारिता में दबाव रहता है कि सुर्खियां हमेशा बनाते हैं। आई एम नॉट मेकिंग हेडलाइन। नहीं, आई नो दैट बिकॉज आई वाज आल्सो दिस थिंग, बट यू नो एक परंपरा रही है एंड वी नेवर डिविएटेड फ्रॉम इट। देयर यू नो इट साउंड्स लाइक अ क्लीशे, पर मैं उसको दोहराऊंगा दोबारा। वो एक जीतेंगे तो निश्चित, और जब जीतेंगे जो विधायक दल होगा वो तय करेगा, अगर नहीं तय कर रहा तो आला कमान तय करेगा, वहां पर राहुल जी मैंने जानबूझ के बात बोली थी, मैं जानता था कि अंशुल भाई यही बोलेंगे, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही थी मध्य प्रदेश को लेके, तो मीटिंग खत्म हुई, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सुरजेवाला सब लोग आए, मीडिया के लोग खड़े हुए थे, तो राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, वो चले गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने इसलिए बात कही कि कमलनाथ भी घोषित मुख्यमंत्री का चेहरा। You are saying that there is still a question mark whether Kamalnath will be the chief minister in case the Congress wins the election? 200%. Adesh, you are actually at the end of this program dropping perhaps the most significant bombshell that there is a possibility that even if Congress wins the election, Kamalnath may not be the chief minister. You may have, apart from those two big... मैं राहुल जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा यानी 100% किसी का नहीं, घोषित उम्मीदवार नहीं है। वो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, फिर कहते हैं कि पीसीसी प्रेसिडेंट तो घोषित ही लगभग माना जाता है। नहीं, 18 में सचिन पायलट पीसीसी प्रेसिडेंट थे, कहाँ बनाया मुख्यमंत्री? तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस लीडरशिप ने ये कहीं नहीं कहा है पूरे कैंपेन में कि कमलनाथ हमारे मुख्यमंत्री होंगे अगर हमें पूर्ण बहुमत मिलता है। डीके भाई रह गए थे कर्नाटका में, रह गए, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे लेकिन घोषित नहीं किया। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि ठीक है, टेक्निकली उनको डिक्लेयर ना किया हो, लेकिन ये कांग्रेस की आखिरी लड़ाई नहीं है, 5 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव है। इस तरह का रिस्क लेना क्या कांग्रेस बहन कर सकेगी? कैसा रिस्क? Is it perhaps the compulsion why Shivraj was also brought in
कि अगर कमलनाथ को ला करके लोकसभा संभालना है तो बीजेपी को भी पता है कि अगर जीत गए तो लोकसभा के लिए somebody like शिवराज इज नीडेड। नया आदमी शायद उतना सक्षम नहीं होगा 2024 के लिए। जब वो कैडर पर भरोसा कर रहे हैं, पीएम सेंट्रल लीडरशिप पे भरोसा कर रहे हैं और शिवराज के साथ ऐसी बात होती तो निश्चित रूप से उनको प्रोजेक्ट किया जाता। So here are the final numbers. God help us. BJP 102 to 119 seats, 42% to 43.5% vote. I repeat, 102 to 119 seats with 42 to 43.5% vote percentage for the Bharatiya Janata Party in Madhya Pradesh Battleground 2023. Now, Anshul, some good news for you. You can actually smile, finally, a broad smile, I will say, is that the Congress party likely to get 107 to 124 seats in Madhya Pradesh. That's what our exit poll is saying, with 42 to 43.5% votes, mean with both the parties tied as far as the number of votes are concerned, the Congress party, conversion rate in terms of seats is much better. The others are going to get 0 to 5, means there has been a shrinking of the space shared by the third parties and the other parties, as Sujit was saying in the beginning, and the beneficiary, it seems, to be the Congress party. Anshul, your final comments. No, and I think Sujit ji was also right. I know you will agree with us. so- Yeah, sir, absolutely. But I think that since the vote share, because the Congress is marginally ahead, that itself is going to show that we will win far many more number of seats than your survey suggests. Quick 30 seconds comment, Adesh. 20 seconds only. 5 years after last elections, in assembly election Madhya Pradesh, the vote, the mandate, the result, all seems to be going the same way. राहुल जी, जनता के मन बनाने के बाद कि जनता आपको वोट देना चाहती है, अगर मैं आपके सर्वे को सही मान लूं तो कांग्रेस का बहुत ही खराब प्रदर्शन है और बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जब भले ही सरकार कांग्रेस की बन रही हो, लेकिन जनता का इतना अपार समर्थन मिलने के बावजूद भी अगर आप 10 सीट का 15 सीट का डिफरेंस ला पा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी विफलता है। इसको लेके आप सेलिब्रेट मत करिए। आपने पिछले 3-4 साल में कुछ नहीं किया आपने। आपको इस जीत के लिए लड्डू बांटने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सही है हमारे सर्वे की। मोर पीपल आर वोटिंग दिस गवर्नमेंट आउट बट नॉट वोटिंग फॉर द कांग्रेस। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस जीत के लिए लड्डू बांटने की जरूरत नहीं है, पटाखे मत फोड़िएगा। हाँ, इस पे विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा कि इतने जनता के समर्थन के बाद, इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद आपने क्या पाया। सरकार तो बन जाएगी आपकी, मान लेता हूँ, लेकिन इसमें कहीं तालियां मत पीटिएगा। Because that what you are very right, that if the Congress has not improved from 2018, that means for 2024 the Congress may face a very uphill task in Lok Sabha because you are not improving. तो फिर क्या पता मैं शाह जी फिर वही काम कर दें 16 महीने बाद, क्या आपके पास डिफरेंस ही नहीं है कुछ भी। Hazard warning. Sujit, 30 seconds. मेरा तो इसका मानना है कि जैसे दोनों का अगर वोट शेयर बराबर है तो मुझे लगता है कि जो भी सर्वे बता रहा है कांग्रेस उससे कहीं ज़्यादा सीट जीत सकती है, इसलिए कि भाजपा की जो जीत का जो रेशियो होता है, मार्जिन होता है, बहुत बड़ा होता है। कोई 50,000 Then numbers are greater. कहीं 40,000 से जीतते हैं, लेकिन जीत हार तो एक वोट से ही होती है। तो मुझे लगता है कि अगर I remember CP Joshi in Rajasthan. अगर बराबर का नंबर मिलेगा, मुझे लगता है कि नंबर कांग्रेस ज़्यादा बढ़ा के ले जाएगी, अगर ये सर्वे आपका बता रहा है। नहीं, फिर अंशुल जी लड्डू बांट ले अगर बढ़ जाएगा। Eventually, at the end of throne, I think the only man who will be distributing laddus is our gentleman Sandeep. If his survey goes right, he will be distributing laddus, and if he goes wrong, then certainly we'll tell him that he went wrong. That's all from us as far as this exit poll is concerned. We will be back with Rajasthan, and Rajasthan is a wonderful battle. There are more scimitars and there are more cannons being fired in Rajasthan than I think any battle in recent past. Rajasthan is going to be a very interesting battle, and I think Madhya Pradesh is laying the foundation of perhaps a very quizzing kind of a battle in 2024. We'll be back with Rajasthan. Thank you for watching Gist.